तो भाई ये जर्मनी देखो खाली पड़ रखी है, पूरी पूरी रास्ता खाली पड़ रखी है भाई, पूरी पूरी की पूरी रास्ता खाली पड़ रखी है, पर फिर भी ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना है। Good morning people, I hope you guys are doing great. So heute ist Tag 241, 241, 241, I think yes. We are making chawal, chawal पक रहा है guys, because we already have सब्जी with us. कल रात को बनाया था तो सब्जी ऑलरेडी है, तो हमने सोचा, और जब पाउज़ा होता है वी गेट इट फॉर अराउंड 45 मिनट्स, बट दैट इज़ नॉट इनफ, है ना। वी बिकॉज एंड मोमेंट थोड़ा कम करता हूँ इसको, वो इनफ नहीं हो पाता, है ना। पूरा प्रोसेस, सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ, प्रॉपर चीज़ें एक साथ नहीं बन पाता। एंड दिस वीकेंड हम रात को थोड़ा सा बना लेते हैं एक्स्ट्रा, ताकि हम सुबह यूज़ कर लें, फ्रिज में रखा है। एंड फिर बस सब्जी, ये चावल बना दे, चावल जल्दी से बन जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। और फिर और दूसरी चीज़, कुछ समय क्या तो यहाँ पर बहुत गर्म चल रहा था, और अभी इतना ठंडा हवा आ रहा है ना, बाहर से इतना ठंडा हवा आ रहा है। आज अभी कुछ 19 डिग्री सेल्सियस कुछ हो रखा है, 18-19 डिग्री सेल्सियस ऐसे कुछ हो रखा है, बढ़िया मौसम, है ना। एंड मुझे फिर क्या तो बहुत लोगों ने बोला कि यार इंग्लिश में मतलब ठीक है, अच्छा है ना, तो हिंदी पर ही कंटिन्यू करूँ मैं व्लॉग। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी, इंग्लिश, डॉइच तीनों में आई जस्ट कंटिन्यू विद drei Sprache, okay, Sprachen, Sprachen oder प्लूरल, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, है ना। आइजो गोप्रो मेरा सॉरी चल, मिलते, कीड़ा आ गया था, ये देखो गया गया बाहर, मिलते बाद में। सो गाइस खाना बन चुका है, एंड अब पालती मार के बैठेंगे नीचे और खाना खाएंगे। सो गाइस नाकमिटा का पहला ब्रेक मिल गया है, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। एंड रील भी बहुत टाइम से नहीं बनाया यार, मतलब प्रॉपर ना इंफॉर्मेशन वाला टाइम ही नहीं मिल रहा। अब आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे मेरा छुट्टी है, तो आई थिंक आई मेक सम वीडियोस, रील्स फॉर इंस्टाग्राम, informative reels regarding Cantonese Profungolo Atlas, and yeah. तो ठीक है, अभी बस थोड़ा सा पौधा मिल रखा है 10 मिनट का, तो रिलैक्स करता हूँ, और फिर क्लास ख़त्म होगा, एंड देन आफ्टर द क्लास इज़ ओवर, देन आई वुड टेल यू अबाउट व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। सो यस, जब क्लास ख़त्म हो जाएगा मैं बताऊँगा हमने क्या पढ़ा था आज। Ich werde Ihnen alles erklären, was wir haben heute gelernt nach dem Unterricht. 3 लैंग्वेज में बात करेंगे। दूसरे पौधे में पियेंगे हम चाय। Also Leute, heute ist Tag 241 und let's not waste time and just directly jump into the topics that we studied today. Oh, I got so many and different Farbe. Kugelschreiber. Okay. Reintun. Reintun. Okay. So, what we studied in the Vormittag. Schauen wir mal. Genau. Okay. Rollenspiel. Ich habe, so I already told you yesterday that we were given groups, different groups. We were in different groups, and one had to play the role of a nurse, see, and the other one had to play the role of a patient. And so we would just talk about them, and then we would say like, okay, I would just say how we did. So the scenario was the patient did not sleep well, and then die Pflegefachkraft oder jemand kommt ins Zimmer, und dann er fragt, also wir haben gut geschlafen, bla 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 bla, aber die Patient, der Patient, er hat nicht gut schlafen, und er wollte
gar nichts machen, also kein Körperpflege machen. Und dieses Szenario war, dass die Patin wollte nichts Mundpflege machen und wir können diese, also Pflegeperson, Patient helfen oder, you know, in short, how can the staff or the Pflegefachkraft encourage the patient and to do his Zähneputzen und alles. And we had to use different things. So yeah, so yes, I won't go into detail. Aber I'll give you one tip. When we go to patient's room, so immer when we talk with the patient, so be polite and with your tone, it should be good. So like zum Beispiel, Frau Müller, okay. Guten Morgen, Frau Müller. Also ich bin der Ali, also wenn ich würde mich vorstellen, है ना, तो I would say ich bin der Ali. So, hallo, guten Morgen, Frau Müller, ich bin der Ali. Haben Sie gut geschlafen? है ना, wenn ein Patient sagt, hallo, guten Morgen, ich habe nicht gut geschlafen und sehr wenig geschlafen. है ना, इस टाइप से कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे, ओह, das tut mir sehr leid, aber darf ich Ihnen fragen, warum haben Sie nicht gut geschlafen oder haben Sie eine schlechte geträumt gehabt oder etwas, है ना? Oder haben Sie Schmerzen irgendwo? कुछ भी तुम पूछ सकते हो, जो भी पेशेंट बोलेगा। जैसे मेरा था तो मुझे जब पेशेंट बोला कि नहीं कि आई डिडंट स्लीप प्रॉपर्ली, देन आई वाज लाइक ओके, wenn Sie wollten wieder, also weiter schlafen, Sie können, wir haben Zeit, Sie können für 15 oder halb Stunden schlafen und dann nach dem Halbstunden machen wir weiter mit Pflege, oder? Dann sagen, okay, das passt. Dann später, wir kommen, Und aktivierende Pflege, habe ich Ihnen auch gestern gesagt. Was bedeutet aktivierende Pflege? Wenn wir helfen Patienten, wenn wir geben Anleitung ja, zu Patient und then he does a lot of things by himself. So we need to let the patient do a lot of things and not to, take the lead, aber let the patient do everything what he can do with everything. Okay, mit Transfer, mit Pflege, was immer gibt. Okay. Und was kann nichts machen, das wir können übernehmen oder das machen. Okay. So, also. So I would also talk in Hindi, English und Deutsch. So after that we had a paragraph, we read through it and how to use, because we were also using the reflexive verbs and different personal pronomen and alles everything. So grammar पर ज़्यादा फोकस करना है। मेन चीज़ ये है कि ये übungen है ना, प्रैक्टिस के लिए है, ताकि ये हम जो ग्रामर सीखते हैं वो हम सीखते हैं बट हम पूरा एक ओवरऑल सीखते हैं। But here in nursing, what we need to focus on is basically über Patient, über Krankenhaus, über Diseases, है ना, ये सब Erkrankung, है ना, तो इनके बारे में ज़्यादा हमें फोकस करके हमें मतलब ये ग्रामर को हमें उस पर यूज़ करना पड़ता है। थोड़ा स्टार्टिंग में होता है कि हाँ नहीं हो पा रहा, बट देन इवेंचुअली जिनको ग्रामर अच्छे से आते हैं, वेल एंड गुड, है ना। मुझे ग्रामर इतने अच्छे से नहीं आता, बट ये है कि यहाँ पर आखिर रिवीजन हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, मतलब सही है ना। काफ़ी चीज़ें रिवीजन होकर याद हो रहा है, ओके अच्छा हाँ याद था मुझे, हो गया। तो अब जाके ये है कि 3-3 दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर से बार बार देख रहे हैं ना, तो थोड़ा अच्छा हो जाता है यहाँ पर। तो वही चीज़ है, रिलेटिव जाट्स ये सब हो गया, नेबन जाट्स, रिलेटिव जाट्स, सॉरी नेबन जाट्स, हॉप जाट्स और नेबन जाट्स, इनका कैसे क्या तो वो बनता है। डामिट लगाएंगे तो वर्ब कहाँ जाता है ना, उमसू लगाएंगे तो वर्ब कहाँ जाता है ना, ये सब करके। और वाइल वुल तो क्या कनेक्टर्स है, वो डामिट भी कनेक्टर है, बट ये है कि क्या बोलते हैं, ये इसमें ज़्यादा फिट होता है, मतलब जो ये है ना कि रीज़न, अगर कोई, जिसमें मैंने कल बताया था, कोई ग्लाइश चीज़ है तो उमजू, कुछ ग्लाइश नहीं है तो डामिट लगा के हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ क्या तो जम्बल्ड अप वर्ड्स है, उनको सेंटेंस फॉर्मुलेट करना था, जैसे दिस आउस रूहन हेयर हा
auf dem Sofa, weil müde sein, bla bla bla. So Herr ruht sich auf dem Sofa aus, weil er müde ist. Ja. Die Frau K schminkt sich täglich die Augen, damit sie sich wohlfühlt. फिर फ्राउ एम शेम्ड दिस इमा बाय देयर इंटिम विश। तो बहुत सारे कुछ थे वो सब करा है ना वन एंड देन वी डिड सम वोकैब्स एज वेल। तो वोकैब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेन टॉपिक आज हमारा स्किन भी था, हाउट भी था। तो हाउट को लेके काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ा है ना। वन ऑफ द मेन टॉपिक्स फॉर टुडे फॉर फोमिटाग वो हाउट देयर हाउट है ना। तो हाउट में क्या होता है, फारबे होता है, फॉइशकाइट होता है ना, हाउट ट्यूगर होता है या फिर हाउट स्पानुम होता है, हाउट ओबरफ्लाशर होता है। तो इनमें क्या क्या चीज़ें होते हैं ना। स्किन है तो स्किन में रेडिशनेस होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, पिल से हो सकता है, ब्ला ब्ला अलग अलग चीज़ होता है ना। स्वेलिंग हो सकता है, स्वेलिंग होता है ना, तो स्वेलिंग हो सकता है। तो अलग अलग चीज़ें होता है। तो हाउट के बारे में जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वही चीज़ हमें जर्मन में पढ़ना है, ठीक है। सो फिर हमें वही क्या तो ग्रुप्स में बना रखा था। एंड उसमें हमें भी मतलब ढेर सारी चीज़ें दे रखे थे पढ़ने के लिए कि इसको पढ़ो, इसमें देखो ये क्या क्या वर्ड्स ऐसे हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। बट गॉड साइड काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में आए थे, बहुत कम थे जो चीज़ें मुझे समझ में आता वो डिक्शनरी में देख के हमने कर लिया था, ठीक है। फिर उसके अलावा फिर हमें उनके बारे में लिखना था कि भाई पेशेंट का क्या है, कैसा है, उसके बारे में लिखो, ये सब चीज़ें करो, ब्ला 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 ब्ला। जैसे एक पेशेंट का था तो उसके बारे में लिखने के लिए बोलता तो थोड़ा बहुत लिखा था। जैसे एक फ्राउ म्यूलर है, ठीक है, वो 280 alt है ना, 5 Jahre in Altenzentrum पर है ना। Da gibt ein Patient, sie ist Frau Müller, sie heißt Frau Müller, sie ist 82 Jahre alt und seit 5 Jahren sie sind in Altenzentrum und sie hat keine Angehörigen und aber nur eine Nichte, also Nichte, und sie besucht Frau Müller nur ein paar Mal pro Jahr. Also genau, ein oder zweimal pro Jahr. Okay. Und seit einem Jahr Schlaganfall, legerisch. Also sie hat einen Schlaganfall gehabt und seit ein Jahr sie ist bettlägerisch. Bettlägerisch bedeutet bedridden patient, bedridden, bettlägerisch. Lägerisch mit Umlaut. Lagerisch mit Single A, but lägerisch Umlaut. Okay. Haar- und Stuhlinkontinenz. Und sie hat Harn- und Stuhlinkontinenz. Das bedeutet Harn und Stuhl, है ना। तो जो यूरिनरी जो होता है ना, ब्लेडर और स्टूल का जो इनकॉन्टिनेंस मतलब ये है कि द पेशेंट कैन नॉट कंट्रोल देयर यूरिन और देयर स्टूल गांग, है ना। एंड फॉर दैट दे नीड कैथेटर oder ein Windel. विंडल bedeutet जो पेशेंट यूज़ करते हैं ना, क्या बोलते हैं, डायपर्स वगैरह जैसे यूज़ करते हैं। जो पेशेंट के डायपर्स होता है विंडल होता है, या फिर क्या बोलते हैं ना, जो पैंटी वगैरह यूज़ करते हैं पेशेंट, तो वो इनफैक्ट यूज़ करते हैं इस समय, ठीक है। सो aber sie können, because she is bedridden, she can kaum aufstehen. Kaum aufstehen bedeutet she rarely can, like really selten can selber aufstehen. Sie kann aber rare and zwar mit Hilfe aufstehen, mit Hilfe an Arme einer Pflegefachkraft ein paar Schritte. Okay. So ऐसा hat ein bisschen बेसिकली सिनेरियो दे रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना था और उसे एक्सप्लेन करना था कि कैसे कैसे पेशेंट है, क्या है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। एंड trotz körperliche Einschränkungen, है ना, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, Einschränkungen। आई होप अगर मैं वीडियो देख रहा हूँ तो मैं इसमें नीचे टाइप कर दूंगा स्पेलिंग इसका, ठीक है। gute Laune nicht verloren, also उसको ये सब होने के बाद भी, है ना, इतने Einschränkungen लिमिटेशंस होने के बाद भी जो gute Laune होता है, एक तो हैप्पी मूड होता है, वो उसने कभी नहीं छोड़ा, है ना। तो इस तरह का नाउ विल स्टडी अबाउट what we learned in die Nachmittag. Okay. Wie gestern, wir haben heute auch über spezielle Pflege gestudiert. Und am meisten, wir haben über Mundpflege gestudiert und gelesen. Und ja,
viel Übungen gemacht. So, in short, माउथ जो है बेसिकली मैंने बोलता ना कि क्या तो जो कॉर्पोरेट फ्लेगर है वो जर्मनी में बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉर्पोरेट फ्लेगर इन जर्मनी इज रियली रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज in other countries, just as I told before, because in India we don't focus more on corporate flager, we focus more on what the actually nurses do with blood samples, blah 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 blah, on taking care of the patient with medication and everything. But here nurses do that. A lot of things nurses do not do here. There are separate people who do this work like blood sample and everything. But meistens we need to focus more on the care, to care for the patient. Okay, so speciale pflege, mundpflege, and here we need to focus more on the mund. Important thing is when you learn, you need to also learn the vocabs, like what are the front teeth called, what are the back teeth called, है ना, what are the side teeth called. So you need to learn those words because vocabs is actually really important. If you know the vocabs, it will be really easy for you to go through all this studies. So Herausforderung Mundpflege. What are the Herausforderung Challenges? Herausforderung bedeutet Challenges. Eine kulturelle Herausforderung. Also, wenn ich Ihnen fragen, what are the in cultural, what are the oh man, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, ये बोलो, फिर ना ऐसे एकदम से वर्ड्स आते ही नहीं है, छोड़ो. तो कल्चरली हेरासफोर्डरूम पर ये है कि बहुत सारे ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं, चलो इंटिम प्राइस का तो है कि भाई कि क्या तो बहुत सारे जगह पर ऐसा होता है कि क्या तो कंट्रीज में होता है कि अगर क्या तो मैन है तो वो क्या तो मेल क्या तो स्टाफ से ही क्या तो इंटिम ब्राइश का जो कुछ भी काम है, कैथेटर लगाना हो, साफ करना हो, कुछ भी हो वो करेगा. विमेन है तो फीमेल स्टाफ ही जाएगी. बट जर्मनी में ऐसा कुछ नहीं है ना. तो ये सही है, मतलब क्योंकि यहाँ पर बहुत ओपननेस है, तो सबका अलग अलग है, कल्चर पर कल्चर डिपेंड करता है ये, ठीक है. उसके बाद एनाटॉमी दिस मुंडस एजो मुंड का जो है, माउथ का जो एनाटॉमी है वो हमने पढ़ा, ठीक है. उनके फंक्शंस पढ़े हमने, है ना. लिप्स के फंक्शंस क्या है, मुंड ह्यूले के फंक्शन क्या है, जुंगे के क्या है, दी जुंगे, टंग को जुंगे बोलते हैं ना. जेन फ्लाइश जो गम्स होते हैं, जेन फ्लाइश है ना, उसका क्या है. मुंड श्लाइम हाउट जो स्लाइवा जो हमारे माउथ के अंदर रहते हैं, उनके काम क्या है, ये सब हमने पढ़ा, है ना. तो यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन जस्ट टाइप इन ChatGPT वगैरह में, है ना. एंड इनके फंक्शंस, बट इंग्लिश में सबको पता है कि क्या है. दांत का काम है चबाना, लिप्स का काम है फील करना, वो करना, है ना, या टेस्ट करना, नीचे अंदर की तरह टेस्ट बड्स वगैरह होते हैं, वो करना है ना. टंग का काम क्या है, टेस्ट बड्स वगैरह होते हैं. तो सब चीज़ हमें हिंदी में पता है, इंग्लिश में पता है, हमें बस जर्मन में पता करना है. दैट्स इट. तुम बिंदा स्टॉप करोगे, है ना. थे पर्सनल ग्रुप. तो ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जिसमें क्या तो थोड़ा गिफेरलिश होता है, मतलब कुछ क्या तो चोट लगने का या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, है ना. तो वो सब भी दिखता है. एंड Veränderung des Mundzustands, है ना, Mundtrockenheit. तो मतलब ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जो कैसे दिक्कतें हैं जो मतलब ऐसे हो सकता है. जैसे Mundtrockenheit हो गया, मतलब बहुत लोगों को कुछ खासकर पेशेंट लोग का, है ना, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं पी रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो बिल्कुल ड्राई से हो जाता है ना. स्टोमेटाइटिस हो गया है, स्वेलिंग हो गया है, देयर लिपिन स्वेलिंग देयर लिपिन, मुंड गेरूख बोले तो जो बैड स्मेल होता है ना, कहीं तो अबे दारू की बदबू आ रही है या सिगरेट की बदबू आ रही है, या फिर तो कोई ये अजीब सा कोई जिसने ब्रश नहीं कर रखा हो तो एक गंदी बदबू आती है. तो मुंड गेरूख जो होता है वो बहुत फाउल होता है ना. तो वो सारी चीज़ें. ऑर्गन फंक्शनिस्ट मेरिस्टिक नेरन एफिशिएंस अब्यूज जो बोलते हैं, अबसूस करके कुछ बोलते हैं यहाँ पर, मुझे भी ढंग नहीं आता. आबूसूस करके कुछ अलग सा प्रोनाउंसिएशन था. मतलब इन शॉर्ट ये है कि अब्यूज़ कर रहे हैं ना. तो वही है कि मतलब जो गेरूख होता है वो उनके द्वारा होता है. फिर हमने प्रिवेंशंस के बारे में बात करता है. प्रिवेंशंस एंड बिराटुंग बाय देयर मुंडप्flege. मटीरियल्स क्या क्या यूज़ होते हैं मुंडप्flege के लिए, वी स्टडीड अबाउट दैट. फिर प्रैक्टिस टिप्स था, वो सब
ठीक है। फिर हमें क्वेश्चंस मिला था कि Durchführung der speziellen Mundpflege, है ना, कि जो Mundpflege जो Durchführung है उसे कैसे कैसे करना है ना। Vorbereitung bedeutet कि पहले पहले प्रिपेयर क्या करना है आपको, what do you have to prepare बिफोर यू स्टार्ट विद द Mundpflege, है ना। Durchführung मतलब जो प्रोसेस चल रहा है उसे Durchführung बोलते हैं, तो वो कैसे करना है ना। Beobachtung, what do we need to beobacht, एज इन जो बोलते हैं ना आंखों से देखना, तो हमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखना पड़ता है। एंड डॉक्यूमेंटासियन, है ना, डॉक्यूमेंटियरन करना है हमें। डॉक्यूमेंटासियन पर हमें कैसे कैसे क्या करना है ना, कि जैसे डॉक्यूमेंटासियन पर है Zustand, है ना, फॉर उन नाक der Pflege und durchgeführt Maßnahmen und Besonderheiten oder Reaktionen और Datum और Kürzel जो है वो सब हमें करना है। ब्ला 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 ब्ला, बहुत चीज़ें थे, कुछ शॉर्ट में मैंने बताया। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ था, मतलब फिर Erschrankung थे कि Mundpflege में क्या तो Risiken क्या क्या होते हैं। Unterschied zwischen normaler und speziellen Mundpflege, है ना, कि Unterschied zwischen, तो नॉर्मल और स्पेशल जो Mundpflege होता है, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल और स्पेशल Mundpflege, है ना, व्हाट इज द डिफरेंस, तो वो सब पढ़ा, है ना। Erkrankungen के बारे में पढ़ा कि भाई क्या तो माउथ के डिजीजेस कौन कौन से होते हैं, जैसे सोर हो गया, उराले कैंडिडियोस हो गया, स्टोमेटाइटिस हो गया, फिर एंसुंडुम देर मुंड श्लाइम हाउट जो है अंदर का उस हो गया, है ना। पेरिडोनटिटिस करके हो गया, है ना, अलग अलग थे। अब विस्टिग वस bedeutet von rot nach weiß, was bedeutet von rot bis also nach weiß, तो जो गम्स है, हम जब ब्रश करते हैं तो गम से नीचे की तरफ हम ब्रश करते हैं ना, ताकि जो जर्म्स है, जो भी क्या तो एसिन रेस्ट वगैरह होते हैं ना, मतलब जो पीसेस ऑफ फूड होते हैं, है ना, या फिर स्पाइस रेस्ट बोल लो, एसिन रेस्ट बोल लो, है ना, तो ये सब चीज़ें जो है, या फिर बैक्टीरिया बोल लो, जो भी गंदगी है वो ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ से अंदर गम्स के अंदर जाएगा, है ना। तभी ऊपर से रोट मतलब जो गम्स है वो रेड है ना, और वाइस मतलब जो टीथ है वो वाइट है, तो ऊपर से नीचे की तरफ करना है। फन रोट नाक वाइस, ठीक है। रेस्टुम वाइस, तो ये है मेन चीज़, ठीक है। चलो ये इतना ही था, मतलब पढ़ा तो हमने बहुत कुछ, बट मैंने आपको ये शॉर्ट में बताया। इम्पोर्टेंट इज़ कि जर्मन में जो वोकैब्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब्स हो गया, नोज़ वगैरह को, टीथ वगैरह को, जितना भी मुंड है, कॉर्पोर है, बॉडी है, क्योंकि ये हफ्ता जो था हमारा कॉर्पोर फ्लेगर था, तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि भाई बॉडी पार्ट्स अच्छे से याद कर लो, है ना। लर्न ऑल द बॉडी पार्ट्स इन जर्मन, and when you go through it, whatever vocabs you come across that you don't understand, write it down and with meaning, जो अगर आप हिंदी में अच्छे से समझ सकते हो, if you can understand Hindi well, write it in Hindi the meaning. If you can understand English well, तो write the meaning in English and just learn those vocabs, because the more you learn, je meer du neue Worte lernst, desto besser du verstehst. ये डेस्टो कुछ भी बना सकते हो। तो वही चीज़ है, जितना ज़्यादा हम सीखेंगे, जितना ज़्यादा हम वोकैब सीखेंगे, उतना ज़्यादा हम चीज़ों को समझ पाएंगे, उतना ज़्यादा हम जो क्या हो रहा है वो चीज़ें समझ पाएंगे, है ना। तो यही चीज़ है। तो एंड बहुत लोग वैसे बोलते हैं कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो भी कर सकता है, बट है ना, कि कोई डिफरेंस नहीं है। बट जिसको इंग्लिश आती है, मुझे ये रियलाइज़ हुआ, जिसको इंग्लिश अच्छे से आती है वो जर्मन और अच्छे से समझ सकता है, बिकॉज बहुत सारे जर्मन वर्ड्स होते हैं। एज गिफ्ट अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन जर्मन दैट आर बेसिकली gleich wie es ist in Deutsch, wie es ist in English. So I've really find it easy for me to learn new vocabs. And meistens ich lerne, also wenn you look at the words, the meanings, what you have in A1, A2, B1, है ना, तो वो B2 और C1 पर वो बहुत easy words है ना। absolute, है ना। बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो जर्मन में क्या बोलते हैं, जो इंग्लिश वर्ड्स ही है, बट थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रहा है, थोड़ा सा। जैसे डॉक्यूमेंटासियन है ना, ये तो है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटासियन, डॉक्यूमेंटियरन है ना, इन्फॉर्मेरन, स्टेशन स्टासियन, तो बहुत सारे है ना। तो बैक्टीरिया, बैक्टीरियन, सिंपल है ना।
बहुत बहुत सिंपल चीज़ है, तो यही चीज़ है। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, प्लीज़ in the comment section you can ask me, है ना? If that does not work, I mean, if you have more, then I would suggest. I mean, my Instagram link is always in the description. So if you feel like you have a lot to ask, है ना? अगर मैं बोलता हूँ आपको कि चलो भाई मुझे कमेंट में क्या तो इंस्टाग्राम में टेक्स्ट कर दो, तो आप मुझे लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आप इनफैक्ट मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी होता है। एंड स्पून फीडिंग, कुछ बंदे हैं जो मुझसे बोलते हैं कि यार कि नोट्स भेज दो। नहीं, प्लीज़, आई वुडंट सेंड यू द नोट्स, आई वुड हेल्प यू आउट, आई वुड टेल यू कि क्या क्या सर्च करके आपको मिल सकता है, क्योंकि यार गूगल है, चैट जीपीटी, आपको सब चीज़ मिल जाएगा। मैं देखना चाह रहा हूँ यार मेरे आँख में कुछ है तो नहीं, क्योंकि यूजली मेरे आँख में बहुत जल्दी ज़्यादा देर तक कंप्यूटर में देखते रहो और फिर क्या तो हवा आते आ रहे बाहर से, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। एनीवेज, इन शॉर्ट ये है कि क्या तो मुझे कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेरीज होगा, इनफैक्ट मुझे बता देना, है ना? कुछ भी हेल्प चाहिए होगा मुझे बता देना। इन टॉपिक्स में जो इस हफ्ते का जो थीम था, कॉर्पोरेट फेक था, है ना? इसमें कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो, एंड हम मिलेंगे हम फिर क्या तो दूसरे वाले थीमा फियर में, है ना? आज इस बार थर्ड था कि ना, थीमा थर्ड था, तो थीमा फियर पर मिलेंगे हम। तो अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, चाओ।